हाँ, तो सो हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पहले what we have done in last class. So we have covered basics of what is classical evolutionism. ठीक है. So what I had told yesterday हम थोड़ा सा recap कर रहे हैं कि classical evolution हम उस evolution को बोल रहे हैं जो 19th century या early 20th century में कुछ develop हुआ है evolution के respect में. और इससे रिलेटेड हमारे तीन थिंकर्स हैं, टाइलर, फ्रेजर एंड मॉर्गन. टाइलर वी हैव कवर्ड अ बिट इन लास्ट क्लास, और इसके बेसिक टेनेट्स जो हमने कवर किए हैं वो ये है कि दैट व्हाट दे थॉट, दिस क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थॉट अबाउट द एवोल्यूशन प्रोसेस वाज, first of all, Tyler began the process and he was inspired by Darwin's biological evolutionary theory, and so he sort of thought that I should give some social evolutionary theory, and thereby he like progressed with this anthropological studies and all. ठीक है. तो basically what they thought was कि that every man thinks alike. ठीक है. And that is the reason why in every part of the world, every area of the world, the culture or society is going to evolve and pass through the same stages, and the stages that they named were this: savage and barbarism and civilization, as I've explained in last class also. So the first thing that they believed is psychic unity of mankind, and for which they gave the proof also कि भाई कल्चर पैरेलल्स होते हैं, कल्चरल पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं, विच आर द प्रूफ दैट एवरी मैन एवरीवेयर थिंग्स लाइक. कल्चरल पैरेलल्स लाइक ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन 3 civilizations: हिंदू, मायान एंड बैबिलोनिया. ठीक है. एंड सिमिलरली all mostly the cultures evolved through 3 stages: stone age, bronze age and iron age. So these sort of cultural parallels, they gave examples, and they said that these cultural parallels are the proof that man everywhere is thinking alike. Okay, there is psychic unity of mankind, so they also named it unilinear evolution. ठीक है. It's also called universe. So, and next thing what they thought was कि simple to complex the society moves, or homogeneous to heterogeneous. This I've explained in indefinite to definite, how what does indefinite and definite means. Next, they believed in 2 important things I told you in last class, that this Tyler is known for. One is culture की definition उन्होंने दी है, and second is cultural survivals या फिर जिसको social fossils भी बोलते हैं. Cultural survivals they say are the proof कि भाई कोई society evolve हुई है. Like I told you in the last class कि भाई एक घड़े से लेकर फ्रिज तक का जो सफ़र है, this is evolution. ठीक है. तो घड़ा इज़ नथिंग बट कल्चरल सर्वाइवल. ठीक है. सोशल फॉसिल. तो अप्रोच दैट दे यूज्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी डेटा, दे वर नॉट यूजिंग प्राइमरी डेटा, दे वर आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेनली. टाइलर एंड फ्रेजर आर armchair anthropologist. Morgan is American, and Morgan will be conducting field studies. That we'll talk about in later. ठीक है. क्रिटिसिज्म पर मैंने थोड़ा बहुत टच किया था, बट हम दोबारा से रिपीट करेंगे आज लास्ट थोड़ा सा एंड में, जब हम क्लासिकल एवोल्यूशन ख़त्म कर देंगे तब. सो हम टाइलर के बारे में थोड़ा सा और पता कर लेते हैं कि क्या क्या है. तो टाइलर के मैंने तुम्हें बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, प्रिमिटिव कल्चर. इसी बुक में उसने कल्चर की डेफिनेशन दी थी. ठीक है. अब कल्चर की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन, एंड it is even now sort of considered a universal definition that Tyler has given. So this is a very important definition. We'll see in next few slides what the definition is, and that is the reason why this first very book of anthropology that was written is very important. Primitive culture. ठीक है. इसी में कल्चर की डेफिनेशन आई है. अब नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जिसमें टाइलर ने टच किया है वो है रिलीजन.
ठीक है। अब रिलीजन को टाइलर क्या कहता है, रिलीजन में टाइलर क्या बात करता है, ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो उस टाइम पे क्या था कि मेनली अगर हम सैवेज सोसाइटीज़ देखें, जो सैवेज टर्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ऑल्दो ये टर्म बड़ा डेरोगेटरी है, नहीं यूज़ करना चाहिए, प्रिमिटिव पीपल बोलना चाहिए इनको, ठीक है। दे हैव यूज्ड दिस क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैव यूज्ड द टर्म सैवेज, बट लेटर ऑन पीपल यूज द टर्म प्रिमिटिव पीपल, ठीक है, प्रिमिटिव पीपल। तो सैवेज पीपल कौन थे बेसिकली, अगर हम देखें तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, सिंपल सोसाइटी थी, जिसमें लोग सिर्फ खाना हंट करते थे और अपना जीवन बसर करते थे, ठीक है। तो इनकी लाइफ में यार कुछ मटेरियल चीज़ें ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। इनकी लाइफ में जो था वो था कम्प्लीटली नेचर की, पेड़ हैं, फॉरेस्ट हैं और एनिमल्स हैं और इंसान हैं, यही 3-4 चीज़ें इनके आसपास हुआ करती थी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि यार जब इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज पे था तो उसके दिमाग का भी इतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ था, धीरे धीरे ही हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा है, ठीक हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अगर अगर इंसान को नींद आ रही है, ठीक है, इफ़ वी आर गोइंग टू स्लीप, तो हमें ड्रीम आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो प्रिमिटिव मैन था वो चौंक जाता था कि भाई मुझे ये सपना, ये जो चीज़ हो रही है मेरे साथ, ये क्या हो रही है कि मैं सोने चला जाता हूँ और मुझे फिर कुछ चीज़ें दिखने लग जाती हैं एज इफ इट इज़ अ रियल लाइफ, बट देन व्हेन आई ओपन माई आईज आई सी दैट दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ, देन व्हाट इज़ इट। तो उसको पता तो था नहीं कि भाई ये ड्रीम होता है, ये ड्रीम नाम की कोई चीज़ होती है। तो वो ये ना ऐसा इसको एसोसिएट कर लेता है कि भाई ये किसी टाइप का मतलब कुछ, ये सोल है मेरे पास एक आत्मा है जो निकल जाती है, और जो सपने में वो देखता है ना लाइफ, वो सोचता है कि ये लाइफ वो जी के वापस आ जाती है मेरे पास। तो ठीक है, उसने इस चीज़ को सोल से एसोसिएट कर लिया, ठीक है। और दूसरा वो ये देखता था कि यार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सो जाते हैं, जैसे मैंने देखा कि पहले यार मैं तो आज सो रही हूँ, मैंने कुछ लाइफ में मैंने एक नई लाइफ देखी, भाई कुछ हो रहा है, बट मैं दोबारा से उठ गई, आई केम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, ठीक है, आई केम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, बट उस जो लाइफ में हुआ दैट वॉज ड्रीम, ठीक है। तो उसमें उसने बोला कि माई सोल केम बैक, बट देन सम पीपल एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो कि भाई एक कोई इंसान सोया और वो जगा ही नहीं कभी, हम तो उसे कहेंगे ना कि भाई उसकी डेथ हो गई, उसको नहीं पता भाई ये डेथ है। तो वो ये कहता है कि भाई यहाँ पे इसकी सोल ना वापस नहीं आई, इसकी सोल चली गई आसमान में, ठीक है, इसकी सोल चली गई, ठीक है। तो इसीलिए इसने 2 टाइप की सोल्स एसोसिएट कर दी, ये कहता है कि 2 टाइप की सोल्स होती हैं, 2 टाइप की सोल्स होती हैं, एक जो जाती है पर वापस आ जाती है, दैट हैपन्स, दैट इज़ एसोसिएटेड विद ड्रीम, ठीक है। और दूसरी होती है जो जाती है बट वापस नहीं आती है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद डेथ। तो एक सोल हो गई ड्रीम और हेलुसिनेशन वाली, और एक हो गई डेथ वाली, ठीक है। तो ये था बेसिकली रिलीजन का कंसेप्ट जो टाइलर ने दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइलर ने रिलीजन को बहुत अच्छे से टच किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है, इलेबोरेट किया है। अब इसी सोल्स वाले प्रोसेस में ना टाइलर ये कहता है कि भाई इन्होंने इस सोल की या फिर कह लो कि ये जो सोल नेचर से कनेक्टेड है, इसी की पूजा भी करना शुरू कर दिया। तो इस जो सोल की पूजा है हाँ यहाँ पे इसने कनेक्ट किया था रिलीजन से, हाँ ऊपर हाँ तो हाँ उसमें पता तो चलता है। हाँ, तो इस सोल की पूजा को ये बोलता है कि ये एनिमिज्म है, इसका नाम इसने एनिमिज्म रखा, ठीक है, एनिमिज्म। अब इस एनिमिज्म में भी 2 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक मैंने बताया था कि जो सोल वापस आ जाएगी, द सोल दैट कम्स बैक। अब ये देखते हैं कि भाई कोई इंसान अगर सो रहा है, वो प्रिमिटिव मैन तो बहुत नाइव था ना, उसको कुछ पता ही नहीं था, तो वो बस ये वेट करेगा, वो एक फ्यूनरल परफॉर्म करेगा, जिसको टाइलर ने बोला है ग्रीन फ्यूनरल,
ग्रीन फ्यूनरल, ठीक है। अब हम्म, अगर वो इंसान उठ गया तो मतलब कहते हैं कि वो सोल वापस आ गई, तो ये ग्रीन फ्यूनरल हुआ, ठीक है। बट अगर वो इंसान नहीं उठा, उसकी डेथ हो गई है, तो वो थोड़ा और रिचुअल्स कुछ परफॉर्म करेगा ग्रीन के साथ साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई फ्यूनरल में, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास 2 फ्यूनरल रिचुअल्स भी हुआ करते थे, 2 फ्यूनरल रिचुअल्स भी हुआ करते थे, समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है। तो और सोल की वर्शिप को जब ये एनिमिज्म बोल रहे हैं, तो ये हम्म, सोल को एक हायर बॉडी का खिताब दे रहे हैं। ये वो बोलता था, टाइलर ये कहता था कि वाई दिस इज़ अ सुपीरियर बॉडी और हायर बॉडी, बिकॉज कि सोल के अंदर एक एबिलिटी है हमारी नॉर्मल बॉडी से कभी भी निकल के जाने की और निकल के आने की, और यही एक बॉडी है जो 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 हमारी कोई भी प्रेयर्स होंगी या फिर हमारी विशेस होंगी, ये कहीं बाहर जाएगी और उनको पूरा करके हमारे पास लेकर आएगी, ठीक है। इसीलिए ये जो सोल की वर्शिप है, इसको ये एनिमिज्म का नाम देने लगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा रिलीजन का एस्पेक्ट था टाइलर का, ठीक है। अब ये तो हो गया एनिमिज्म। अब ये तो हो गया एनिमिज्म। एनिमिज्म आपको समझ में आ गया है कि एनिमिज्म इज़ ऑल अबाउट सोल। अब अगर इसी सोल को अगर ये हम कह दें कि भाई ये सोल कहीं जाकर एक पेड़ में बस गई या फिर एक जानवर में बस गई, ठीक है, तो ये जो रिलीजन है ये टोटमिज्म का नाम ले लेगा, टोटमिज्म का नाम ले लेगा। टोटमिज्म का मतलब क्या है कि जब ये मानने लग गए कि भाई ये सोल किसी लिविंग एंटिटी में जा चुकी है, नेचर की किसी लिविंग एंटिटी में जा चुकी है, जैसे कि पेड़ या फिर कोई जानवर या फिर किसी भी टाइप का पौधा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी को ये नाम देंगे टोटम। वो टोटम है और उसकी पूजा करना टोटमिज्म है। टोटमिज्म, इसको अगर मैं एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो ये है कि टोटम ना, हमारे यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि हिंदू कल्चर में गोत्र होता है, ठीक है। हाँ, हम बोलते हैं ना कि किसी का गोत्र क्या है, तो कुछ कुछ लोग अपना गोत्र कोई एनिमल से एसोसिएट करते हैं कि भाई हमारा गोत्र एक शेर है या फिर हमारा गोत्र हाँ, सांप है या फिर ऐसा कर, तो वो लोग उन लोगों के जो बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रूड और डिस्टेंट एंसेस्टर्स रहे होंगे ना, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया होगा कि उन्होंने उस कोबरा की पूजा करी होगी या फिर उस कोबरा को अपना एक एंसेस्टर मान लिया होगा कि भाई इस कोबरा में हमारे एंसेस्टर्स की जान जा चुकी है, सोल जा चुकी है, और ये कोबरा हमारे लिए बहुत शुभ है अब, और ये कोबरा हमारी सारी विशेस पूरी करेगा या फिर हमारे एग्रीकल्चर में या फिर यील्ड बढ़ाएगा या फिर हमें 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 खाने की कभी कमी नहीं होने देगा, हमें रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होने देगा। इस टाइप से ना उन एंसेस्टर्स ने, एकदम डिस्टेंट एंसेस्टर्स ने कहीं डेवलप किया होगा, तभी ये आज भी थोड़ा प्रैक्टिस होता है कि यार आज भी गोत्र में कुछ एनिमल्स और पेड़ों के नाम कहीं हम एसोसिएट करते हैं अपने एंसेस्ट्री में, ठीक है। समझ में आ गया? ये टोटमिज्म को आप इस तरह से अपनी सोसाइटी से एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो ये हुआ कि ये रीड कर लेना, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने टाइलर का रिलीजन बता दिया है। तो बेसिकली टाइलर यही कहता है कि रिलीजन जो है, रिलीजन के एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसने रिलीजन के एवोल्यूशन को स्टार्ट करवाया है एनिमिज्म से, ठीक है। एनिमिज्म इज़ बेसिक सोल की पूजा। उसके बाद एनिमिज्म पे वो टोटमिज्म पे आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि सोल घुस गई है कि भाई किसी लिविंग एंटिटी में। उसके बाद वो टोटमिज्म से आ जाएंगे पॉलीथीज्म में। पॉलीथीज्म मीन्स कि बहुत सारे भगवान। तो वो ये कहता है कि यार जब ये सोल बहुत सारी चीज़ों में घुस जाएगी तो लोग सोचने लग जाएंगे कि हमारा ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ठीक है। तो अब कुछ टाइम बाद इन भगवानों की एक हायरार्की बन जाएगी
इसमें भी एक जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, इस हायरार्की में भी एक सबसे बड़ा भगवान आएगा एक, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके होते हुए मोनोथीज्म आ जाएगा। तो बेसिकली वो ये बोलता है कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है और इवॉल्व होती है, तो हाईएस्ट स्टेज पर सिविलाइजेशन की स्टेज पर मोनोथीज्म प्रैक्टिस होता है। मोनोथीज्म मतलब सिंगल गॉड। यस, वेरी गुड। तो वो यही बोलता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया, ओके। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये था, दिस इज वॉज ऑल अबाउट दैट टाइलर टॉक्ड अबाउट, कि भाई उसने रिलीजन के ऊपर क्या बात करी है, ठीक है। अब टाइलर ने रिलीजन में इतना एलैबोरेट कर दिया कि टाइलर के रिलीजन से ही एक और क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट है हमारे पास, फ्रेजर इज ऑल्सो अ ब्रिटिश मैन ओनली, ठीक है। फ्रेजर लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी का थिंकर है। ये तो कोर 19th सेंचुरी का है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी का थिंकर है, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ कुछ बुक 1900s कुछ में भी लिखी है, ठीक है। तो फ्रेजर, अब हमें इसको लिंक करना है कि फ्रेजर इज़ इंस्पायर्ड बाय ई.बी. टाइलर, और फ्रेजर लिखेगा बहुत सारी बुक्स भाई रिलीजन पर, वो हम आगे देखेंगे कि वो रिलीजन में क्या क्या चीज़ें बोलता है। मीन टाइम तुम ये याद रखना कि ये जो सेटअप है ये टाइलर ने दिया है कि एनिमिज्म से टोटेमिज्म की तरफ, टोटेमिज्म से पॉलीथीज्म की तरफ, पॉलीथीज्म से लेकर मोनोथीज्म की तरफ सोसाइटी मूव करती है इन रिस्पेक्ट टू रिलीजन एवोल्यूशन, ठीक है। अब हो गया हमारा, ये हो गया। और नेक्स्ट इज़, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि टाइलर ने ना एक ये पॉइंट बोला था अपने एवोल्यूशनरी थ्योरी में कि हाईली इवॉल्व्ड सोसाइटीज़ आर द हैप्पीएस्ट वंस। वो ये कहता है बेसिकली कि जो सैवेज वाली सोसाइटीज़ हैं या बारबेरिक सोसाइटीज़ हैं, दे आर नॉट एज हैप्पी एज द सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। सो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि एज द सोसाइटी इवॉल्व्स द हैप्पीनेस ऑल्सो ग्रोज, ठीक है। इसको भी तुम क्रिटिसिज्म में डाल सकते हो। तुम जैसे भी कोई चीज़ें सोचो तो उसके साथ साथ उसका क्रिटिसिज्म भी सोचा करो, तो सो दैट यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, यू जस्ट एनालाइज द थिंग्स एंड सी कि यार उसको हम कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई कोई इंसान जंगलों में रह रहा है और अपनी इकोनॉमी हंटिंग गैदरिंग रख रहा है तो फिर वो दुखी इंसान होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे सिविलाइज सोसाइटी में लोग ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, लोग ज़्यादा आइसोलेशन में है, ज़्यादा डिप्रेशन में है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जंगलों वाले इंसान दुखी हैं, ठीक है। तो इसको तुम क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, दिस पॉइंट वेयर ही सेज कि भाई जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है हैप्पीनेस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट इन तीनों को साथ में देखते हैं। इन तीनों को हम साथ में देखते हैं, टाइलर को, फ्रेजर को और मॉर्गन को। पहले हम टाइलर का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। टाइलर का मैंने तुम्हें बता दिया कि इसने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है, प्रिमिटिव कल्चर, और दूसरी है मैक्सिको एंड मैक्सिकन्स, और तीसरी इसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें इसने एनिमिज्म की थ्योरी दी थी, वो है एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ये इस टाइप का टेबल तुम ज़रूर बना लेना व्हेन इट कम्स टू एवोल्यूशन, क्लासिकल एवोल्यूशन, स्टेज, सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। और यहाँ पे टाइलर ने बात करी है टेक्नोलॉजी की, रिलीजन की और मैरिज की, ठीक है। टेक्नोलॉजी, रिलीजन और मैरिज। अब इसमें हम देखेंगे फ्रेजर भी रिलीजन की बात करेगा, बट जो मॉर्गन है वो मैरिज और फैमिली की बात तो बहुत अच्छे से करता है, बट मॉर्गन रिलीजन की बात नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी है, इसको वर्ड बाय वर्ड रट लो। दिस हैज़ टू बी मगेफाइड वर्ड बाय वर्ड। मैं कुछ भी चीज़ वर्ड बाय वर्ड मगेफाई करने के लिए नहीं बोलती हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मैंने एक ये निमोनिक बनाया हुआ है, ये कंबल सी,
ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन गोज लाइक दिस: द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by man as a member of society. अब अगर मैं तुम्हें इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ तो वो ये बोलता है कि जो कल्चर है ना वो दिस इज़ acquired by man. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। दिस इज़ acquired by man. acquired by man का मतलब है कि जब इंसान पैदा हो रहा है तो कल्चर उसके पास नेचुरली नहीं जा रहा, नेचुरली इनहेरिट नहीं हो रहा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न टू अ फैमिली, ठीक है। वो उसको लर्न करना पड़ता है। अब इसका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो वो ये है कि अगर आज कोई एक बच्चा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल XYZ फैमिली में नोएडा में सपोज करो कि एक बच्चा होता है, ठीक है, नोएडा की फैमिली में एक बच्चा होता है, बट नोएडा के कुछ कल्चर होगा, कुछ नॉर्म्स होंगे, सब कुछ होगा कि एक रहने का तौर तरीका होगा, लाइफस्टाइल होगा, बट इस बच्चे को आप बचपन से ही एक जंगल में छोड़ाओ तो क्या वो लैंग्वेज सीख पाएगा? क्या वो लाइफस्टाइल सीख पाएगा? क्या उसे फ़ोन चलाना आएगा? क्या उसे टैब चलाना आएगा? क्या उसे उस लहजे में बात करना आएगा जो नोएडा के लोग बात करते हैं? क्या उसे इंग्लिश बोलनी आएगी अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में बॉर्न हुआ है? नहीं ना। तो इसीलिए ये कहता है कि भाई कल्चर इज़ लर्नड एंड हाउ इट इज़ लर्नड, कैसे हम सीखते हैं। हम अगर बचपन में कुछ चीज़ सीखे हैं तो वो किस तरह से सीखे हैं? ऑब्वियसली सोशलाइजेशन से यार, फैमिली से सीखे हैं, स्कूल से सीखे हैं, सोसाइटी से सीखे हैं, हमारे आसपास के लोगों से सीखे हैं। दिस इज़ ऑल सोशलाइजेशन, इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो इसका कहने का मतलब यही है कि भाई इंसान सोशलाइजेशन से अपना कल्चर एक्वायर करता है, वो इनहेरिट नहीं होता उसको, ठीक है। और वो कहता है कि कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स कंबलसी, ठीक है, ये याद कर लो, नॉलेज, आर्ट, मॉरल, बिलीफ, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by man as a member of society, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नहीं, ये और करने का है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेज़र, ठीक है। Fraser was born in late 19th century, and so that is why he is considered late 19th century or early 20th century का classical evolutionist. अब मैंने तुम्हें एक important चीज़ बताई थी और वही सबसे ज़्यादा important है फ्रेजर के लिए, that he was inspired by Tyler when it comes to religion, ठीक है। वो टाइलर की प्रिमिटिव कल्चर बुक से इंस्पायर्ड था और उसके सारे रिलीजन के जो एस्पेक्ट्स हैं जो उसने डिस्कस किए हैं उनसे इंस्पायर्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि उसने फ्रेज़र की ये 3 बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और ये जो गोल्डन बाउ है इसकी अराउंड 10 वॉल्यूम्स हैं जो रिलीज़ हुई हैं। गोल्डन बाउ इज़ ऑल अबाउट मैजिक एंड रिलीजन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मैजिक एंड रिलीजन, ठीक है। तो इसकी 3 बुक्स ये हैं, गोल्डन बाउ, साइकी टास्क, टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेज़र। अब हम देखते हैं कि वो क्या बोलता है। देखो, टाइलर ने कहा था कि भाई रिलीजन सब स्टार्ट हुआ है एनिमिज़म से और एनिमिज़म से टोटमिज़म पे जाएगा, ब्ला ब्ला, ठीक है। अब फ्रेज़र ये कहता है कि भाई रिलीजन स्टार्ट हुआ है मैजिक से, ठीक है, मैजिक से, और ये जाता है फिर इसके मैजिक के बाद रिलीजन डेवलप हुआ, उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी में साइंस आया, ठीक है। एज द सोसाइटी इवॉल्व्ड, science is the peak stage of evolution, whereas magic is the stage of savagery, ठीक है। magic is the stage of savagery. Now what he talks about is, वो ये कहता है कि savage people or primitive people, they used to perform magic for everything,
ठीक है, वो हर चीज़ के लिए अगर उनको अपनी एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ानी है या फिर उनको अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करनी है, कोई ट्रैवल स्टार्ट करना है, कोई जर्नी सक्सेसफुल बनानी है, तो वो हर चीज़ के लिए मैजिक यूज़ करते थे। बट ओवर द टाइम जब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार उनके कभी कभार ना मैजिक्स फेल भी हो रहे हैं, और उनको वो मैजिक क्या है कि नेचर के साथ किसी ना किसी टाइप का खिलवाड़ करना, मतलब कि खिलवाड़ नहीं, मैनिपुलेट करना, कि यार आप किसी जानवर की सपोज़ करो कि जानवर के बाल ले आओ और फिर उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करो, तो नेचर को मैनिपुलेट करना हो गया ना। तो मैजिक कभी कभार जब फेल होने लगा तो उनको लगा कि यार nature is not able we are not able to manipulate the nature completely. Now they switched to religion is now they switch to religion, where they simply pray to gods and expect good positive results, ठीक है। And as the societies evolved, religion was dominated by science when everything was given a logical solution, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल सोल्यूशन हेयर। वो ये कहता है कि मैजिक से जब कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं निकला तो दे शिफ्टेड टू रिलीजन, और रिलीजन में भी कुछ कुछ लॉजिक्स कम रह गए हैं, तो द साइंस हैज़ डोमिनेटेड द सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? अब तो इसी हिसाब से ना ये मैजिक को एक वर्ड देता है स्यूडो साइंस। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मीन्स फॉल्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स। जस्ट लाइक साइंस आंसर्स आर क्वेश्चंस लॉजिकली, वो ये कहता है कि मैजिक आंसर्स सैवेज पीपल्स questions logically. They just develop some sort of logic on their own through their own magics, and that's why he calls magic a pseudo science, ठीक है। अब मैजिक में इसने ये बोला कि मैजिक में इट वर्क्स ऑन दीज टू प्रिंसिपल्स कि भाई वन इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड वन इज़ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसका मैं डिफरेंस तुम्हें समझाऊँ तो ऐसे याद कर लो कि कॉन्टैक्ट मीन्स कि कहीं ना मैजिक तभी परफॉर्म होगा जब आप उस चीज़ का कॉन्टैक्ट में हो। सपोज़ करो कि अगर वो एक एग्जांपल देता है कि अगर आपको चीते के जैसी एनर्जी चाहिए ना, तो आपको चीते का खून पीना पड़ेगा। चीते को मार के चीते का खून निकाल के आपको चीते का खून पीना पड़ेगा, टाइगर का खून पीना पड़ेगा अगर आपको उसकी एनर्जी। तो दिस इज़ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसी तरह से लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का मतलब है कि एग्जैक्टली आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हुए हो, बट आप कुछ ना कुछ मैजिक परफॉर्म कर रहे हो जो उसका इफ़ेक्ट लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कहता है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करना चाहता है तो वो उसकी एक वूडू डॉल बनाएगा। इसको वूडू डॉल बोलते हैं, ठीक है। वूडू डॉल होती है एक ब्लैक कलर की ना डॉल होती है, तो उसमें वो उस इंसान की एनर्जी इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्म और मैनिपुलेट करते हैं कि अगर वो इसको पिक करेगा, मतलब कि चोट पहुंचाएगा, तो वो इस एक्चुअल इंसान को भी चोट पहुंचेगी। इसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड दिस इज़ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरह से उसने बोला कि दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑन विच मैजिक वर्कड, ठीक है। एंड मैजिक फॉर सैवेज पीपल, मैजिक एंड रिलीजन वर ऑल अबाउट कि भाई लोगों की मोरालिटी डिसाइड करना, एंड कि वेयर एंड हाउ वी हैव ओरिजिनेटेड, ये सब चीज़ें डिसाइड करना, या फिर समहाउ इन सब चीज़ों का आंसर करना, ठीक है। और फ्रेजर ये कहता है कि प्रूफ ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर बरियल्स। अब इराक में एक जगह है शानीदार में एक्चुअली हमारे भी बहुत ज़्यादा पुराने एक एंसेस्टर्स हुआ करते थे। होमो सैपियंस नहीं थे, वो होमो निएंडरथाल्स थे। निएंडरथाल्स की ग्रेव्स हैं वहाँ पे, और वो ग्रेव ना बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट हैं। इलेबोरेट इन द सेंस कि ग्रेव के अंदर अगर आप देखोगे तो फूल पत्तियाँ भी हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ स्टोन्स हैं। तो बेसिकली इंसान के साथ इन सब चीज़ों को भी गाढ़ा हुआ है,
दैट मीन्स कि भाई ये सबसे अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि वहाँ पे रिलीजन एग्जिस्ट करता था। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अदर वर्ल्ड से, दिस वर्ल्ड की चीज़ों को दैट वर्ल्ड से अगर आप लिंक कर रहे हो तो दैट मीन्स दैट यू बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो फ्रेज़र ये बोलता है कि फ्रेज़र ने ये सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी फील्ड स्टडी करी है, जिसमें इराक के शानीदार में उसने ये फील्ड स्टडी करी है, और वो ये बोलता है कि दीज बरियल्स आर द प्रूफ ऑफ existence of religion and magic in the savage and barbaric times। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली बुक है टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी, टोटमिज्म एंड एक्सोगैमी में जो मैंने आपको बताया था कि टोटमिज्म के बारे में टाइलर ने बोला है, एग्जैक्ट वो ही चीज़ फ्रेज़र ने भी बोली है, दैट Totemism is one sort of religion that has existed among savage and barbaric people। और वही चीज़ सेम फ्रेज़र ने बोली है, that totems originated as belief in soul, as soul existed in plants and animals, therefore eating or killing tabooed have been tabooed for the टॉटम्स। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अगर किसी एंसेस्टर्स ने किसी एक पर्टिकुलर जानवर को टॉटम बना लिया है तो उसको खाना पूरी तरह से वर्जित होगा। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तुम रीड कर लेना कि व्हाट इज़ अ टॉटम, अ क्लास ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट सैवेज बिलीव्ड सुपरस्टिशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट देयर एग्जिस्ट बिटवीन हिम एंड एवरी मेंबर ऑफ क्लैन अ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये चीज़ें तुम थोड़ा सा ध्यान में देना कि टाइलर ने फ्रेज़र को इंस्पायर किया। अब फ्रेज़र की जो गोल्डन बाउ है, ये दिस इज़ सच अ फेमस बुक कि ये आगे एक और थिंकर आएंगे मेलिनोस्की। ठीक है, मेलिनोस्की हमारे एक फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं, हम आगे जाके 2-3 क्लासेस बाद देखेंगे। उनको बहुत इंस्पायर करती है गोल्डन बाउ, और उसी के बेसिस पे मेलिनोस्की भी रिलीजन स्टडी करते हैं। और इन फैक्ट मेलिनोस्की एंथ्रोपोलॉजी में आते ही गोल्डन बाउ को रीड करके हैं, और फिर ये भी कुछ फील्ड स्टडीज़ करेंगे ट्रोब्रियंस पर और बाकी जगहों पर। ठीक है, तो this was all about Fraser। ठीक है, फ्रेज़र इज़ मेनली अबाउट रिलीजन एंड मैजिक एंड साइंस। तो रिलीजन और मैजिक और साइंस का ना कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजन भी, साइंस भी और मैजिक भी, कोई भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम इसका इस तरह से नहीं हम एक ग्राफ बना या इमेज बना सकते। इसकी इमेज कुछ इस तरह से होगी कि भाई आज की सोसाइटी में भी या फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ में चले जाओ, डोमिनेंस अलग अलग होगा, कहीं पर रिलीजन का ज़्यादा डोमिनेंस होगा, कहीं पर साइंस का ज़्यादा डोमिनेंस होगा, बट मैजिक भी और रिलीजन भी और साइंस भी तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में। ठीक है, कोई डाउट है फ्रेज़र में? नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ मॉर्गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मॉर्गन वॉज अमेरिकन, दीज टू वर ब्रिटिश एंड मॉर्गन वॉज अमेरिकन, तो इसीलिए इसको फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं जिन्होंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, या फिर ये कह लो कि जिन्होंने फील्ड वर्क किया है। और इन्होंने फील्ड वर्क कहाँ पे किया है? इन्होंने फील्ड वर्क किया है नॉर्थ अमेरिका में। एक ट्राइब हुआ करती थी रेड इंडियंस, या फिर इनको बोलते हैं इरोक्वाई इंडियंस। ठीक है, इनके ऊपर ये ट्राइब याद रखना, ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो मॉर्गन बेसिकली लॉयर थे, एडवोकेट थे, और ये इनका इस ट्राइब के पास जाने का जो मोटिव था वो इनको स्टडी करने का नहीं था,
इनका मोटिव था हम्म, कुछ डेवलपमेंट पर्पस से। क्या हुआ था कि इनकी ज़मीन अक्वायर कर ली थी, लैंड एक्विजिशन हो गया था, गवर्नमेंट ने कर लिया था। तो मॉर्गन का बेसिकली मोटिव ये था कि इनकी लैंड या तो इनको वापस दिलाओ या फिर इनको डिस्प्लेस करो कहीं पर और कहीं और ज़मीन दिलाओ। तो इस प्रोसेस में उन्होंने इस ट्राइब को स्टडी किया बहुत अच्छे से, और इन्होंने ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बन गए उसी प्रोसेस में। एक्चुअली ही वॉज अ लॉयर, ठीक है। तो अब उसी प्रोसेस में ये जब बन गए तो इन्होंने ये 3 बुक्स लिखी, सबसे इम्पोर्टेंट, एंशिएंट सोसाइटी और लीग ऑफ इरोक्वाई एंड सिस्टम ऑफ कंसैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ अ फैमिली, ठीक है। ये इरोक्वाई तो तुम याद रख सकते हो कि उसी ट्राइब की है। एंशिएंट सोसाइटी, कंसैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ फैमिली जो बुक है ना, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्योंकि मॉर्गन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो रहा है फैमिली में। जिस तरह से टाइलर का कंट्रीब्यूशन रिलीजन के एवोल्यूशन प्रोसेस में रहा है, मॉर्गन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फैमिली और किनशिप के एवोल्यूशन प्रोसेस में रहा है, ठीक है। किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप का मतलब होता है कि किन्स का मतलब होता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनको किन्स बोलते हैं। कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं दीज आर माई किड्स एंड किन्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारी फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को हम किन्स बोलते हैं। मैं बोलूँगी मेरे कज़न्स को, मैं बोलूँगी दीज आर माई किन्स, ठीक है। तो किनशिप की उसने स्टडी करी है कि भाई फैमिली में जो ट्राइबल फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। एक ट्राइब सॉर्ट ऑफ एक फैमिली ही होती है, ठीक है। तो इसने स्टडी करी है कि भाई ये फैमिली किस तरह से वर्क करती है और इनका पूरा इकोसिस्टम कैसा होता है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम कैसा होता है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम कैसा होता है, और ये एक दूसरे को क्या चाचा मामा ताऊ बुला के क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं वो इसने स्टडी करी है बहुत अच्छे से। तो इस बुक में इसने यही काम किया है, ठीक है। कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब होता है कॉन्सैंग्विन। कॉन्सैंग्विन का मतलब होता है बाय ब्लड, ठीक है। जो लोग बाय ब्लड जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैं और मेरे मम्मी पापा बाय ब्लड जो जुड़े हुए होते हैं। एफिनल मीन्स एफिनिटी, एफिनल मीन्स जो बाय लव जुड़े होते हैं, बाय प्यार से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, आर फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस, दीज पीपल, ठीक है। तो इसने ये बुक लिखी हुई है, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड एफिनिटी ऑफ अ फैमिली, कि भाई एक फैमिली में कॉन्सैंग्विनल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, एफिनल रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, एंड ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तब अब और क्योंकि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, क्योंकि ये इनकी लैंड केसेस ही लड़ रहे थे मॉर्गन इनके, तो इसीलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात करी है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और किस तरह से अलग अलग सोसाइटीज़ में एवोल्यूशन के साथ साथ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस अफेक्ट करता है सोसाइटी के एवोल्यूशन में, ठीक है। तो मेथड इनका ये तुम्हें पता लग गया क्योंकि इन्होंने सीधा फील्ड में जाके काम किया है, तो फील्ड वर्क है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। कंपैरेटिव मेथड तो होता ही है बिकॉज वी आर कंपेयरिंग सेवरल सोसाइटीज़ की भाई यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सैवेज स्टेट में क्या हो रहा है, बारबेरिक स्टेट में क्या हो रहा है, सिविलाइज स्टेट में क्या हो रहा है। क्वेश्चनेयर मेथड है इनका क्योंकि बिकॉज ही आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस विद सेवरल पीपल टू फॉर्मुलेट अ एथनोग्राफिक सेटअप, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, ठीक है। ये टेबल, इसमें देखो मैंने तुम्हें बताया था हेयर टाइलर ने सिर्फ काम किया है कि भाई उसने बहुत बेसिक चीज़ें बताई है कि रिलीजन इस तरह से इवॉल्व होगा, एनिमिज्म से लेकर मोनोथीज्म तक, मैरिज इस तरह से इवॉल्व होगी, रिलीजन प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से लेकर मोनोगमी तक, और टेक्नोलॉजी इस तरह से इवॉल्व होगी कि भाई हंटिंग गैदरिंग से लेकर राइटिंग तक, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा इस ही टेबल को इलेबोरेट कर दिया है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पॉलिटी पर, मैरिज पर, किनशिप पर, फैमिली पर, फैमिली के जो भी एस्पेक्ट होते हैं पर प्लस पॉलिटी, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई टाइलर ने तो सिर्फ एक लीनियर क्लासिफिकेशन दे दिया था सैवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन का, और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में भी सब क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। सैवेजरी के अंदर भी इन्होंने 3 स्टेजेस डाली हैं, लोअर सैवेजरी, मिडल सैवेजरी एंड अपर सैवेजरी। बार्बरिज्म में भी इन्होंने 3 स्टेजेस डाली हैं, लोअर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म एंड अपर बार्बरिज्म, ठीक है। तो इस तरह से जब इन्होंने ये सब क्लासिफिकेशन किया है तो इसमें देखते हैं कि देखो इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि लोअर बार्बरिज्म एकदम सबसे जो लोअर सैवेजरी वाली स्टेज है, लोअर सैवेजरी वाली स्टेज है, इसमें लोग सिर्फ फायर एंड फ्रूट गैदरर हुआ करते थे। उसके बाद मिडल सैवेजरी में फिशिंग थी और अपर सैवेजरी में हंटिंग गैदरिंग थी और बॉव एंड एरो का डेवलपमेंट था, ठीक है। अब यहीं पर तुम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। कैसे? यहीं पर तुम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो क्योंकि यार देखो 2 टाइप के एरियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री में भी देख रहे हो, तो ये आपका कोस्टल एरिया है और ये आपका मेनलैंड एरिया है। अब यहाँ पे थोड़ी ना कोई फिशिंग होगी, फिशिंग तो सिर्फ यहाँ पे होगी ना। तो हो सकता है कि ये फिशिंग और हंटिंग गैदरिंग दोनों साथ में चल रहे हों, इसमें हमको एक हायरार्की डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म इनका लिख सकते हैं मॉर्गन का, कि इनका जो टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन वाला हायरार्की है उसमें कुछ गलतियां हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग एंड हंटिंग कुड गो हैंड बाय हैंड डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफी ऑफ द एरिया, ठीक है। एंड सेकंड इज़ बार्बरिज्म में ये बोलते हैं कि सबसे पहले ये बोलते हैं कि पहले पॉटरी डेवलप हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलप हुए, उसके बाद एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन डेवलप हुए और अपर बार्बरिज्म में आयरन डेवलप हो गया। चलो ये तो सही है, अपर बार्बरिज्म में ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यूलिथिक स्टेज आ गई और आयरन डेवलप हो गया। बट दिस इज़ कॉमन सेंस कि भाई पहले एग्रीकल्चर आएगा फिर पॉटरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत थे, इन्होंने पहले पॉटरी को रख दिया और एग्रीकल्चर, ये दूसरा क्रिटिसिज्म इनका बन गया। और राइटिंग एज यूजुअल टाइलर की तरह इन्होंने भी ये कहा है कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डेवलप्स इन सिविलाइजेशन इज़ राइटिंग ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ही टॉक्स अबाउट पॉलिटी। अब पॉलिटी में अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना तुम। मैं थ्योरीज़ में दोबारा बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से थ्योरीज़ पढ़ो, बिकॉज इफ़ यू हैव डन थ्योरीज़ वेरी वेल देन ऑल योर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी आर अ केक वॉक। बिकॉज पॉलिटी अगर आपने यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ लिया तो पॉलिटी का एक अलग चैप्टर है, अलग जो चैप्टर आएगा पॉलिटी का उसमें आपको यही लिखना है, कुछ अलग खास नहीं लिखना है, ठीक है। जो थ्योरीज़ में पढ़ोगे वही लिखना है। अब पॉलिटी अगर हम देखें, देखो पॉलिटी अगर हम देखें तो देखो जो सिंपल ट्राइब्स होती हैं उनमें क्या होता है, मतलब ट्राइब्स जो होती हैं, जो सिंपल लिविंग पीपल होते हैं, प्रिमिटिव पीपल होते हैं, उनमें क्या होता है कि भाई 20-25 लोग अपने हैं, या सपोज करो 50 लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्हीं की फैमिली के हैं या फिर उन्हीं की एक्सटेंडेड फैमिली के हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये अपने आप में से ही किसी एक को उठा के चीफ बना देते हैं, ठीक है, चीफ बना देते हैं, या फिर इसमें अलग अलग नाम दे देते हैं, शमन बना देते हैं, शमन नाम होता है, या फिर कुछ भी नाम दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं, ये जो ट्राइबल सेटअप होता है ना पॉलिटिकल, जिसमें यार अपने आप में ये लोग डिसीजन ले लेते हैं अपनी फैमिली के अंदर ही कि भाई किस तरह से हमारा गवर्नेंस होगा, हम क्या रन करेंगे, हमारे क्या क्या रूल्स होंगे, ये अपने आप में फैमिली में जो बना देते हैं, इसको बैंड सिस्टम बोलते हैं, बैंड पॉलिटी, ठीक है, बैंड पॉलिटी बोलते हैं इसको। अब पॉलिटी ये बोलता है कि पॉलिटी इस तरह से इवॉल्व हुई है कि बैंड से लेकर चीफडम, या फिर ट्राइबल से लेकर, अगर हम बारबेरिक स्टेज में अगर आए तो बहुत सारी ट्राइब्स मिलके पहले सिर्फ एक बैंड होगा,
इस एक ट्राइब का, अगर बहुत सारी ट्राइब मिल के एक हेड चूज कर दें, चीफ, ठीक है, एक हेड चूज कर दें, चीफ, थर्ड स्टेज क्या होगी? बैंड, चीफ एंड सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ की जो फाइनल स्टेज होती है वो है जो आज हमारे टाइम में एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट इज़ स्टेट। ओके। ठीक है, स्टेट जिसमें कि डेमोक्रेसी हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, हमारे टाइप की जो भी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ पॉलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसने पढ़ी है, जो इसने फील्ड वर्क किया है, वो है किनशिप। किनशिप की टर्मिनोलॉजी। अब ये बोलता है कि जो किनशिप की टर्मिनोलॉजी है वो उसका एवोल्यूशन सैवेज टू बारबेरिक टू सिविलाइज्ड स्टेट्स में इस तरह से होता है कि वो क्लासिफिकेटरी से लेकर डिस्क्रिप्टिव। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है जब हम किनशिप की टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं? किनशिप की टर्मिनोलॉजी तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे हमारी किनशिप की टर्मिनोलॉजी क्या है? चाचा, भाई, ताऊ, मौसी, मौसा, ये सब है, ठीक है। अब तुम इसी को थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके देखोगे तो आज तुम देखोगे कि यार तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं अलग अलग नाम से जिनको तुम पुकार सकते हो। चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, मामा, मामी, मौसी, हर एक इंसान का एक अलग रिलेशनशिप होने के साथ साथ उनका एक अलग नाम आ जाता है, बुआ, फूफा, है ना। तो ये बोलता है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव वे है टर्मिनोलॉजी डिसाइड करने का, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव वे है जिसमें हम कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज़ आ गई हैं भाई, सबको एक स्पेशल नाम दे दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। और पर ये आज आया है जब आज हमारी सोसाइटीज़ डेवलप हो गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजीज़ हुआ। क्लासिफिकेटरी मतलब कि आप क्लासीफाई कर दो कि जितनी भी मम्मी की उम्र की औरतें हैं उनको सबको मैं मम्मी बोलूँगा, जितने भी पापा की उम्र के मर्द हैं उनको सब मैं पापा बोलूँगा, पापा की साइड के जितने भी लोग हैं उनको सबको मैं पापा बोलूँगा, ठीक है। या फिर जितने भी मेरे पापा के साइड के मैं अगर फीमेल हूँ तो जितने भी मेरे पापा की साइड की फीमेल्स हैं उनको मैं सिस्टर बोलूँगी। सभी को एक ही नाम दे दिया, सिस्टर। कोई भतीजी, भांजा, भांजी और बहन भाई कुछ नहीं, सबको सिस्टर नाम दे दिया, ठीक है। सबको मम्मी दे दिया, कोई मौसी और ताई कुछ नहीं, सबको मम्मी नाम दे दिया। कोई मौसा, ताऊ, चाचा कुछ नहीं, सबको पापा नाम दे दिया। ये एक क्लासिफिकेशन कर दिया भाई हमने कि ये इस टाइप से मैंने क्लासिफाई कर दिया। तो ये कहता है कि क्लासिफिकेशन से डिस्क्रिप्टिव, क्लासिफिकेटरी से लेकर डिस्क्रिप्टिव की तरफ जब टर्मिनोलॉजीज मूव करती हैं, यही टर्मिनोलॉजी का एवोल्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। और इसी के साथ साथ वो ये बोलता है, हेलो, हाँ आवाज एक नहीं आ रही। सेकंड। हाँ, इसी के साथ साथ ये हमारी हो गई किनशिप टर्मिनोलॉजी स्टडीज़, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये बोलता है कि हाँ, कि फैमिली कैसे इवॉल्व होती है। अब फैमिली और मैरिज के एवोल्यूशन को हम साथ में देख लेते हैं, ओके। ठीक है। मैरिज के एवोल्यूशन को ये बोलता है कि पहले प्रोमिस्क्विटी एग्जिस्ट करती थी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, ठीक है। इसको बोलते हैं पीपी, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्विटी मतलब कि भाई, मतलब कि कुछ भी किसी इंसान को कुछ समझ नहीं है, जानवरों की तरह लोग रह रहे हैं, कोई भी इंसान किसी के साथ भी सेक्स कर ले रहा है, ठीक है। कोई सेक्सुअल डेफिनेशन नहीं है। ये है प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी। प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से आगे मूव करेगी
सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व करेगी, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी से मूव करके ये बीच में एक और चीज़ होती है, ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज मीन्स कि वो क्लासीफाई कर देंगे, दीज आर सिस्टर्स एंड दीज आर नॉन सिस्टर्स। तो भाई आप जाके बहुत सारे लोग, आप 4-5 लोग जाके आप 4-5 नॉन सिस्टर्स के साथ जाके शादी कर लो। उसके बाद आएगा पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी मीन्स ऐसा नहीं है कि आदमी की ही 4-5 वाइफ होंगी, औरत के भी 4-5 पति हैं। ये पॉलीगैमस सोसाइटी है। ठीक है, पॉलीगैमस सोसाइटी, ग्रुप मैरिजेस। उसके बाद फाइनली वो बोलता है कि मोनोगैमी आती है, जैसे ही सोसाइटी एकदम हाईएस्ट स्टेज पे, सिविलाइजेशन वाले स्टेज पे इवॉल्व हो चुकी है। 1 मैन 1 वुमन, दैट्स इट। ठीक है, तो मोनोगैमस इज़ द फीचर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, अब ये बात हुई भाई हमारी मैरिज की। मैरिज के साथ साथ अगर हम इसमें फैमिली देखें, देखो इसी में हमें देखना है कि फैमिली कैसी बनेगी। ठीक है, अब इसी में अगर हम फैमिली देखें तो इधर प्रॉमिस्क्यूटी में तो यार भाई कोई भी किसी के साथ भी सेक्स कर रहा है, इधर कोई कोई फैमिली नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, और ग्रुप मैरिजेस में ये बोलते हैं कि इसने एक वर्ड दिया है, पुनलिनियन फैमिली। इसको बोलते हैं पुनलिनियन फैमिली। पुनलिनियन फैमिली में बस ये होता है कि भाई नॉन सिस्टर्स से आप शादी कर सकते हो और सिस्टर्स से आप शादी नहीं कर सकते। बस सिस्टर एंड नॉन सिस्टर ब्रदर आर फॉरबिडन, रेस्ट ऑल कैन मैरी। ठीक है, अब और पॉलीगैमस में क्या होगा कि पॉलीगैमस फैमिलीज भी होंगी, पॉलीगैमस फैमिलीज में ज़्यादातर फैमिलीज जो होंगी वो पैट्रियार्कल होंगी। पॉलीगैमस फैमिलीज का मतलब क्या हो गया कि ये देखो, लड़के का साइन ये होता है, लड़की का साइन ये होता है और लड़के का साइन ये होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी करी और एक लड़के ने 2 लड़कियों से शादी करी। ठीक है, तो अब इनकी जो फैमिली क्रिएट हुई है, इसको हम बोल सकते हैं पॉलीगैमस फैमिलीज। ठीक है, तो इसी तरह से मैरिज के साथ साथ फैमिली का भी इवोल्यूशन हुआ, पॉलीगैमस फैमिलीज टू मोनोगैमस फैमिलीज। ठीक है, मोनोगैमस फैमिलीज इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फैमिलीज। कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, अब जब इसने फैमिली की बात करी तो इसने प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की भी बात करी। इसने ये बात करी कि जब प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है ना, प्रॉपर्टी क्रिएट होना इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस ऑफ गेटिंग इनटू मोनोगैमस मैरिजेस एंड मोनोगैमस फैमिलीज। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मैं अगर एक आदमी हूँ और मेरे पास ये 2 एकड़ की लैंड है और मैं अगर 2 औरतों से शादी कर लूँ तो भाई इन 2 औरतों के अलग अपने 2 बच्चे हो जाएं। ठीक है, 4 बच्चे हो गए, तो ये 2 एकड़ लैंड तो 4 बच्चों में स्प्लिट हो जाएगी ना। एंड सो ये कहता है कि प्रॉपर्टी क्रिएशन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई मोनोगैमस फैमिलीज एंड मोनोगैमस मैरिजेस स्टार्टेड। ठीक है, ओके। अब इसको हम इधर देख लेते हैं। देखो, और ये भी याद रखना कि जो मॉर्गन है, ही डिड नॉट यूज़ द वर्ड सैवेज, ऑल्दो इसने कुछ नया ख़ास वर्ड नहीं यूज़ किया, इसने यूज़ किया नोबल सैवेजेस। थोड़ा सा कम डेरोगेटरी वर्ड कह सकते हैं, नोबल सैवेजेस। ठीक है, एंड सर्वाइवल्स को इसने बोला दीज आर रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट। ये मैंने तुम्हें कल बता दिया था कि सर्वाइवल्स को सोशल फॉसिल्स भी बोलते हैं और रेमिनेंट्स ऑफ पास्ट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर रिमेनिंग्स फ्रॉम पास्ट। ठीक है, सो ये रीड कर लेना। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, राइज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी
and property inheritance gave rise to monogamy and descriptive kinship system. ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी के एवोल्यूशन का भी स्टेज मॉर्गन ने डिस्क्राइब करी थी कि हाउ फ्रॉम सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइज्ड स्टेजेस प्रॉपर्टीज़ वर इनहेरिटेड, किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेड होती थी। अब सैवेजरी में वो ये कहता है कि भाई पीपल आर बरीड विद देयर ओन ग्रेव गुड्स, उनके ग्रेव गुड्स जैसे मैंने तुम्हें बताया कि उनके कोई आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, कोई स्टोन्स हो सकते हैं, कोई टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, दे आर बरीड विद देयर ग्रेव गुड। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी पास हो नहीं रही है, ठीक है, मेरे पास जो भी मेरे टूल्स हैं वो मेरे साथ बरी हो जाएंगे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देर इज़ कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है। बोलता है कि बारबेरिक स्टेजेस में थोड़ा सा इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट होता है, और वो भी इस तरह से होता है कि पहले कम्युनिटी ओनरशिप होती थी, जैसे कि ये 1 एकड़, ये 2 एकड़ लैंड है या 1 एकड़ लैंड है, ये 5 लोग ओन करते हैं, ठीक है, ये 5 लोग ओन करते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ में कम्युनिटी ओनरशिप ही होती है कि कम्युनिटी ओनरशिप मतलब कम्युनिटी ओन्स द रिसोर्सेस, ठीक है। तो कम्युनिटी ओनरशिप से लेकर उसके बाद सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में प्रॉपर जिसे कहते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप आई, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आया, इनहेरिटेंस आया, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मोनोगैमी एंड मोनोगैमस सोसाइटीज़ डेवलप हुई, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बारी। क्या? ये जो सेकंड स्टेज बताई ना आपने, कम्युनिटी ओनरशिप। savage- हाँ एग्जैक्टली बताओ क्या एक्सप्लेन करूँ? कम्युनिटी ओनरशिप, हाँ, ये जो आपने लिखा हुआ ऑनरशिप वाला VML जो पॉइंट है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बताया। तुम्हें बताया था ना कि उसने सब क्लासिफिकेशन किया है, अपर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म एंड लोअर बार्बरिज्म, ठीक है। तो लोअर बार्बरिज्म में वो ये कहता है कि पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लीनिएजेस व्हेन ओनर डाइड, अगर कम्युनिटी ओनरशिप है तो व्हेन वन पर्सन डाइज उसके बच्चे को चला जाएगा, उसके खुद की लीनिएजेस में चला जाएगा वो जो लैंड होगा, ठीक है। उसके बाद भी कम्युनिटी ओनरशिप है। कम्युनिटी ओनरशिप बेसिकली बार्बरिज्म में थोड़ा ज़्यादा है, बार्बरिक स्टेजेस में। अपर बार्बरिक स्टेज में फिर भी थोड़ा सा जाके स्टेट एंड इंडिविजुअल ओनरशिप आता है, ठीक है। स्टेट ओनरशिप मतलब कि नॉट कम्युनिटी, स्टेट ओन्स द रिसोर्सेज एंड स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, ठीक है। और इंडिविजुअल ओनरशिप बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड है। तो वो ये कहता है कि सिविलाइज्ड स्टेजेस में थोड़ा सा जाके इंडिविजुअल ओनरशिप ज़्यादा आती है। आपको समझ में आ गया ना कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओनरशिप में फ़र्क क्या है। कम्युनिटी मतलब कि बहुत सारे लोग एक रिसोर्स को ओन करते हैं, इंडिविजुअल मीन्स मैं अकेले ओन करती हूँ, समझ में आ गया? तो यहाँ पे बार्बरिज्म में तो स्टेट आया ही नहीं था, स्टेट तो एंड मतलब इसमें आया था ना, सिविलाइजेशन। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एकदम हार्डकोर क्लासिफिकेशन कहीं नहीं होता। यहाँ पे अपर बार्बरिज्म में लिखा हुआ है, अपर बार्बरिज्म में कुछ क्रूड फॉर्म ऑफ स्टेट डेवलप होना शुरू हो गया होगा, ठीक है, इसीलिए समझ में आ गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। और वो ये बोलता है कि क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आया, इसी की वजह से पैट्रियार्की भी डेवलप हुई। क्योंकि क्या हो रहा है कि व्हेन द मैन ओन्स द रिसोर्सेज, व्हेन द मैन, बिकॉज आदमी ने ही तो मतलब सारी इकोनॉमी स्टार्ट करी है। औरत घर पे रह रही है और आदमी हंटिंग गैदरिंग करने जा रहा है, या फिर औरत बहुत छोटे छोटे मीनियल काम कर रही है क्योंकि औरत को बच्चे भी संभालने हैं। तो जब वो औरत घर में रह रही है तभी वहीं से हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से ही मैन डोमिनेटेड द रिसोर्सेज, started dominating the resources, and when the man lands the resource, patriarchy starts. Because why? Because woman is not inheriting her any resource, man is going to inherit the resource. और जब
और जब वो अपना कोई ज़मीन जायदाद कुछ अपना इनहेरिट करवाएगा आगे आगे की अपनी पीढ़ी को, तब पैट्रियार्की भी ऑब्वियसली प्रिवेल करेगी, ठीक है, क्योंकि मैन का रूल होगा, मैन विल बी डोमिनेटिंग द सोसाइटी। तो ये यही कहता है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पैट्रियार्की इन द सोसाइटी परसिस्टेड। ठीक है, हाँ। तो इसमें